Vinita ma'am. Vinita ma'am. Class 11 science. Yes, ma'am. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Just wait for a few seconds. Vinita ma'am would be there. I think she has been admitted. Vinita ma'am, are you there? Yes, ma'am. Good Okay, morning. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, students. Good morning, ma'am. Very good morning to all of you. Ma'am, there is a one participant by name user, right? So don't get confused. This class is getting recorded, right? Okay, ma'am. Okay. Okay, you can continue your class. Okay, thank you. Okay, students. So, yesterday we are talking about, I think, VSEPR theory. VSEPR theory. So, how many students can tell me about VSEPR theory? How many students? Anyone? There's a new student. Khushi. खुशी बेटा बेटा कल आपने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर between loan pair and bond pair. So starting with the difference between loan pair and bond. Okay. In covalent compound, you know about covalent bonding, Khushi? Khushi beta, you know about covalent bonding? मैम एक सेकंड मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम ओके नो प्रॉब्लम मैम नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इधर की साइड इसलिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है अच्छा नो प्रॉब्लम ऋतिक कुशवाहा unmute yourself. Hrithik Kushwaha. Yes, ma'am. Today is your first day? Second day. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So the top. So or VSEPR theory? No. So starting with VSEPR theory, I repeat it for the new students. Student, VSEPR theory, V stand for valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. So first we discuss about lone pair and bond pair. Lone pair and bond pair. In any covalent compound, किसी भी covalent compound में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं म्यूचुअली शेयर्ड होते हैं म्यूचुअली शेयर्ड मीन्स ऋतिक म्यूचुअली शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स बेटा न्यू स्टूडेंट है आई डोंट नो अबाउट कि आपको कितना पता है इस टॉपिक के बारे में तो थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर दूंगी फिर नहीं तो फिर आपको आज की पूरी क्लास को समझ में नहीं आएगी तो ऋतिक do you know about covalent bonding mutual sharing of electron beta ji mutual sharing of electrons no chaliye koi baat nahi suppose that in methane CH4 carbon has 4 valence electron dot these dot shows electron of carbon and these cross shows electron of hydrogen
तो these are mutually shared electron. Mutually shared electron means कि one electron is available by carbon and one electron is available by hydrogen. इसको बोलते हैं बेटा mutually shared, कि अगर आपने कार्बन है यानी सेंटर एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कर रहा है तो सराउंडेड एटम भी एक इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल करेगा. इसको बोलते हैं बेटा म्यूचुअली शेयर्ड. ठीक है बेटा, इतना आ गया आपको समझ में? आ गया. अच्छा, तो किसी भी सेंटर एटम में, जैसे मान लीजिए कार्बन यहाँ पर एक सेंटर एटम है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. ठीक है, तो इसने सारे के सारे बॉन्ड पेयर बना लिए. बॉन्ड मीन्स कि उसने सारे 4 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग. तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा जी, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, बॉन्डिंग के लिए हैं. तो ये सारे हमारे कितने हो गए बेटा, बॉन्ड पेयर. तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड पेयर. तो कार्बन इन मीथेन कार्बन हैज 4 बॉन्ड पेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके बेटा, खुशी? Yes, ma'am. नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म बॉन्ड पेयर. Yes, ma'am. Okay. Now about lone pair of electron. Carbon in methane no lone pair of electron. Lone pair of electron होता क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, lone pair of electron, the valence electron which is not used in bonding. वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं लेकिन बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स लोन पेयर. ठीक. इन अमोनिया, nitrogen, electronic configuration of nitrogen is 2 5. So there are 5 valence electron. How many electrons are needed to complete the octet? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टूडेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3. वेरी गुड. बट उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? नहीं, हाउ मेनी वैलेंस, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5. वेरी गुड. तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट उसको कितने की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 की. एंड हाउ मेनी सराउंडेड एटम इन अमोनिया? सराउंडेड एटम कितने हैं इस नाइट्रोज अमोनिया में? 3. सराउंडेड मींस कि इस सेंटर एटम 3. वेरी गुड. अब इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से. यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए, डॉट shows electron of nitrogen and cross shows electron of hydrogen. देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो यूज नहीं हुए हैं, ये आपको 2 दिख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है. और हमारा देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में तो प्रेजेंट हैं बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर. और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर. इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये टर्म्स आपको समझ में आ गए? ये न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये टर्म्स समझ में आ गए बेटा? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. Now what is VSEPR theory? VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. So how many types of pairs in present in any compound? 2 types. कितनी तरह के पेयर प्रेजेंट होते हैं किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में? लोन पेयर और यस, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर. वेरी गुड. अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने मीथेन का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया, अमोनिया का भी कर लिया. अब हमारा है वाटर. वाटर में देखिए इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं. तो ये एक पूरा एग्जाम्पल है इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी का. तीनों टाइप के इंट्रैक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है? जो लोन पेयर्स के बीच में होता है. द रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन.
लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स कि एक आपका बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और यहाँ पर भी वही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब यहाँ बॉन्ड पेयर क्या है कि जो म्यूचुअली शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो रिपल्शन लग रहा है उसको क्या बोल रहे थे बेटा? बॉन्ड पेयर। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, लोन पेयर repulsion is maximum and bond pair repulsion is minimum. So moderate is lone pair and bond pair. Due to presence of two centers, two different nucleus, due to presence of two centers or two different nucleus, repulsion between bond pair is minimized. इसका सेंस ये होता है कि अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की हम बात करें बेटा, टू सेंटर्स मतलब इस बॉन्ड पेयर को दो लोग गवर्न कर रहे हैं, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी। यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं, एक नाइट्रोजन का और एक किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसको मिनिमम रिपल्शन होगा। और अगर बात हो रही है लोन पेयर की, तो एक ही न्यूक्लियस गवर्न करता है विच इज न्यूट्रलाइज, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मिनिमाइज, सो रिपल्शन इज मैक्सिमम। ये टर्म समझ में आ गए आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो मैं इससे भी इजी लैंग्वेज में बता सकती हूँ आपको। नो मैम। ओके बेटा, सो नेक्स्ट कल हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड विदाउट लोन पेयर, यानी रेगुलर ज्योमेट्री स्ट्रक्चर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे the structures of compound having lone pair of electrons. Okay, geometry of molecules having lone pair of electrons. Now first is molecular type. Like previous class, molecular type is, suppose that A, B to E. Here E represents lone pair, B represents surrounded atom and A represents center atom. बिल्कुल जैसी कल आपको टेबल बनवाई थी वही है, बस इसमें चेंज क्या है बेटा जी? E. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E is equals to lone pairs. अब A, B to E टाइप में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? सबसे पहले आपको ये पता करना है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? आपका ज्योमेट्री क्या है? एक्सपेक्टेड, और शेप क्या है? और एग्जांपल्स। ये कल भी टेबल मैंने बनवाई थी, बट उसमें क्या था? विदाउट लोन पेयर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है? लोन पेयर। सबसे पहले A, B to E टाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो हमारा एग्जाम्पल हुआ SO2. SO2. S is the member of group 16 students. S is the member of group 16. So how many electrons present in valence shell? 6. Very good. Very good. अब यहाँ पर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस सल्फर में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। थर्ड चैप्टर में आपको बताया गया था +2, +4 एंड +6। ठीक है बेटा, +2, +4 एंड +6 ये हमारा शो करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये पता है ना आप लोगों को? अब यहाँ पर मैंने शो क्या किया है? ई शो क्या किया है बेटा जी? 1, मतलब ई टाइप है, यानी कि हमें लोन पेयर कितना लेना है बेटा? 1। देखिए इसी टाइप के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो दैट मीन्स यहाँ से आपने किया कैरी कि 1 तो आपका लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। अब B2 यानी सराउंडेड एटम कितने हैं स्टूडेंट्स? 2। वेरी गुड। हाँ, तो सराउंडेड एटम अब हम कितने बनाएंगे स्टूडेंट्स? 2। और है हमारा कौन सा? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दोनों ही ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं,
तो ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स? 6. 6. तो इज इट पॉसिबल कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड? No, ma'am. ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड No, ma'am. फॉर्म कर सकता है? नहीं। देखिए, अगर आपको बुक्स में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों स्ट्रक्चर्स आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आपको बुक में ये लिखा है या ड्रॉ किया हुआ है इसलिए मैंने ड्रॉ किया। आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। फर्स्ट इज दैट कि ऑक्सीजन फॉर्म ओनली डबल बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो वन एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज दिस। ठीक है बेटा, एक एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री आपकी ये होती है कि आपने दोनों के साथ डबल बॉन्ड बनाया, और सल्फर में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 इज कंप्लीटेड, एंड हियर आल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट इज कंप्लीटेड फॉर सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ। मतलब ऑक्टेट यहाँ पर सभी की कंप्लीट हो गई है, ये दिख रहा है ना आपको? बट VSEPR थ्योरी में हम लोग डबल बॉन्ड को इग्नोर करते हैं कि हमें डबल बॉन्ड में माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है। अब दूसरा एक्सपेक्टेड जो आपका स्ट्रक्चर होगा इसका, वो क्या हो जाएगा? अब देखते हैं बेटा, कि मुझे कंप्लीट करना है, एक ही लोन पेयर बनाना है क्योंकि AB2E टाइप है। दैट मीन्स सल्फर हैविंग ओनली वन लोन पेयर, एक ही लोन पेयर है। उसके बाद अब क्या करना है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकते हैं। वट वन पॉसिबिलिटी इज देयर कि ऑक्सीजन के पास जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये oxygen can form dative bond. Dative bond means coordinate bond, and coordinate bond is a special type of covalent bonding in which shared pair electron is available by both atoms but available by only one atom and used by both combined atoms. अब इसका octet देखिए, sulfur, is sulfur complete their octet students? No, ma'am. Yes, very good. Sulfur cannot complete their octet in this structure, and this structure is drawn in your NCERT book and reference books. So the possible structure is only this. Then sulfur can form double bond with any one oxygen atom and dative bond with one oxygen atom. Okay, one double bond and one dative bond can form. आपको स्ट्रक्चर्स का ये मैंने जितना कोवलेंट बॉन्डिंग आपको एक्सप्लेन किया था उसमें ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक। यस मैम, आ गया। Yes, ma'am. देखिए बेटा, यहाँ पर अब आपको ये स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है? मैंने कहा ये A, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और ये। तो अब बेटा आपको ये कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जितने आपने कल पढ़े थे? रेक्टेंगल, Triangle. ट्रायंगल, Trigonal planar. Triangle. वेरी गुड वेरी गुड। तो ट्राइंगल, दैट मीन्स AB2, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपने कल एक पढ़ा था उसमें आपने कौन सा पढ़ा था? AB3 टाइप। सराउंडेड एटम इसमें कितने थे? AB3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था बेटा? AB3 टाइप। Triangular. Trigonal ट्राइंगुलर, planar. वेरी Trigonal गुड। planar. ओके ओके, ये किसने बोला ट्राइगोनल प्लेनर? एक मिनट बेटा, किसने बोला था ट्राइगोनल प्लेनर? कैन यू रिपीट वंस अगेन? अनुराग। Trigonal planar. हाँ अनुराग, ट्राइगोनल प्लेनर। बट दिस इज ओनली अनुराग एक्सपेक्टेड, दिस इज ओनली एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। व्हाई एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर? व्हाई expected shape? As in AB3 type structure, no lone pair is present. So regular geometry के according तो इसका बेटा जी होगा trigonal planar. This is expected shape. But इसका actual shape होता है हमारा bent. Okay?
Yes, ma'am. Expected shape is trigonal planar and actual shape is bent. Band. Bent means कि not a particular trigonal planar. एक perfect trigonal planar नहीं होता है, इसका bond angle जो है वो shrink कर जाता है. अब यहाँ पर number of lone pair electron is 1 and number of bond pair electron is 2. In board exam, students structures draw only by pencils. Use pencils to draw the structures. आपको पेंसिल से आपको ड्रॉ करने होंगे बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं. आप पेन से अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है बेटा? Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. So next move with second type of compounds. AB3E. AB3E type. इसका एग्जाम्पल्स आप लोग देंगे क्योंकि इसके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आपको लास्ट 2 क्लासेस से मैं बता चुकी हूँ. Very good, very good. AB3E means NH3. Very good. इसको एक्सप्लेन करना है या आपको पता है ये? मैम पता है. बट इसका शेप और ज्योमेट्री जो है वो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बतानी है आपने बेटा जी. शेप तो चलिए आपको मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस में, ये ज्योमेट्री तो हो गया. अब शेप देखिए इसका. कल आपने पढ़ा था AB4 टाइप. AB4 टाइप कल आपने पढ़ा था बेटा CH4. उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या बोला था? Tetrahedral. Very good, very good. So expected structure is Tetrahedral. very good. Expected structure is tetrahedral, but actual structure is Pyramidal. very good, pyramidal. Due to presence of lone pair of electrons. Very good, very good, very good. कौन था ये? Pyramidal. Okay. Next type is AB3E type. Next type is our AB2E2 type. AB2E2 type. इसका एग्जाम्पल भी बेटा मैंने कल ही बताया. H2O. Very good, very good. H2O. That means कि water. तो इन water lone pair कितने होंगे स्टूडेंट्स? 2. बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2. ज्योमेट्री जो है वो आपको पता है, इसमें 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स. ओके. सो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, एक्सपेक्टेड शेप, इसका भी क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड, क्योंकि सराउंडेड एटम इसको भी कहते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड इसमें भी बेटा हो जाएगा टेट्राहेड्रल, बट एक्चुअल शेप इसका भी क्या हो जाएगा? बैंड. वेरी गुड. अब बेटा एक बोर्ड का 12th क्लास में जो एक बोर्ड का क्वेश्चन आता है, पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद और टेबल बताऊंगी. ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन इट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये नए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके. तो क्वेश्चन इज, although NH3, CH4 and water all having sp3 type hybridization, yet their shapes and angles are different. अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2 बार पूछा गया है. तो एक बार वाई और एक बार इसको जस्टिफाई द स्टेटमेंट.
2015 में जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड 2017 में इसी क्वेश्चन को वाई करके दे दिया, दोनों में ही आंसर सिमिलर रहेगा। तो अब इसमें बेटा आप क्या आंसर लिखेंगे, एक मिनट, वन बाय वन जस्ट रेज योर हैंड, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्राची, ओके प्राची, प्राची, Ma'am, Yes. because the presence of one lone pair in NH3 and the two lone pairs in H2O and no lone pair in CH4. So that's why their shape become different. and bond angles too. Yes, and bond angles too. Very good. Next, Anshita. Yes, ma'am. Yes, मैम सेम रीजन है। सेम रीजन है। मैम सेम रीजन है जो प्राची ने बोला। यस मैम। Okay. Anything else? Aditi. Okay. So first of all, just draw the structures. पहले आपको तीनों structures draw करने हैं बोर्ड एग्जाम में. Even this question opt only 1 mark. इस क्वेश्चन का 1 मार्क ही बोर्ड एग्जाम में है, बट फिर भी आपको तीनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, उसके नीचे लोन पेयर बॉन्ड पेयर लिखना है, और एट द लास्ट अकॉर्डिंग टू VSE PR थ्योरी दिस स्टेटमेंट टू सपोर्ट द आंसर लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. Okay, clear students? Clear beta? Yes ma'am. So now next type of molecular structure is AB2 type, AB2E2 type, AB4E type. How can I know कि इसके बाद ये होना चाहिए? क्यों बेटा? How can I know? देखिए number of surrounded atom is increases. Here 4, then I involve in 5. Okay, surrounded atom include lone pairs. ठीक है बेटा? तो AB4E type. Example is SF4. So anyone can explain the structure or geometry? Ma'am, geometry होगी trigonal bipyramidal. Yes. Yes. और shape भी same ही होगा. Due to presence of 4 surrounded atom and 1 lone pair of electron. Due to presence of 4 surrounded atom, 1 lone pair of electron. Expected structure is trigonal bipyramidal. उसमें आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो आपको पता होगा कि कल भी यही टेबल बनवाई थी, बट विदाउट लोन पेयर. दिस इज एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल शेप इज Seesaw. very good. Seesaw. This is distorted trigonal bipyramidal structure. Yes ma'am. Ma'am, 5 minutes. Okay. But ma'am, it's only 9. Okay. 9. Ma'am, the class finished at 9:10, na? The 5 minutes before prior I have logged in. Okay. So expected structure is trigonal bipyramidal. Actual structure is seesaw. So due to presence of only 1 lone pair of electron, it shows distorted trigonal bipyramidal geometry, which shows the actual shape is seesaw. Any problem, students? Now this is the most important type of structure, AB3E2 type.
most important, and you can write it most important for board examination, not for 11th class. स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में, इस पर भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं एक साथ बताती जा रही हूँ, बोर्ड क्वेश्चंस, वो आप अभी से नोट करते जाएंगे। ये नहीं है कि अभी तो हमारा 11th क्लास है, ये पूरा बोर्ड का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, AB3E2 टाइप। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए, क्योंकि ये टाइप केवल और केवल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, जो वर्ड आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बट द टर्म शोज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मींस कि between two halogens, the compound formed between two halogens, a covalent compound formed by mutual sharing of two halogen is known as interhalogen compound. That means कि surrounded atom और center atom दोनों ही halogens हैं, but they are different. Okay, so example is ClF3, most important structure for board examination, repeated continuously from 2003 till 2019 alternatively. ClF3, ओके, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। देखिए बेटा, इसमें आपका सराउंडेड, इसमें भी 5 हैं, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर भी सराउंडेड 5 हैं, 3 + 2 and 4 + 1। अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को स्टूडेंट्स, तो ये टोटल यहाँ पर भी 5 हैं और यहाँ पर भी 5 हैं, दोनों में ही 5 है ना स्टूडेंट्स, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if the chlorine is center atom and only three surrounded atom present, so how many lone pair of electron present, student? 2. Very good, 2. So 2 lone pair of electrons present. So expected geometry is trigonal bipyramidal, Bipyramidal. but actual shape is T-shape. Why this is important? ये इतना important क्यों है, इसमें इतना तो कुछ टफ नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको समझ में नहीं आया हो। This is only the important because of T shape. 90% student draw this structure like that. क्लोरीन, और आपने T इस तरह बनाया, क्योंकि आपने नर्सरी क्लास से जो आप T पढ़ रहे हो वो इस तरह होती है, T है ना, ये होती है ना T। कभी आपने इस तरह की तो T पढ़ी नहीं है, ये तो T नहीं कहोगे आप, ये होता है T। तो बेटा जी, अब ये वाला जो T शेप था, आपने अपने अकॉर्डिंग तो T शेप बनाया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सराउंडेड एटम, सब कुछ बिल्कुल सही है, बट बोर्ड एग्जाम में इसमें आपको कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर T शेप जो है वो यही परफेक्ट शेप है। समझ में आ गया बेटा, ये T शेप नहीं बनाना है। 80% स्टूडेंट जब आप 12th में आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में ये स्ट्रक्चर है, आप भी यही ड्रॉ करेंगे। उसका रीजन ये होता है, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में ये स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, बट बोर्ड में, सीबीएसई में स्ट्रक्चर